And welcome to this morning class, my dear friends. I am here today for the remaining part of our yesterday's class. So, we have been studying, dear friends, The Lost Spring by Anis Jung, and we have seen the story of Sahib, and yesterday we started the story of Mukesh. So we have seen that Mukesh, the very beginning of the class is that, see this part. Mukesh wants to drive a car. For example, this is Mukesh. So he wants to drive a car, and to become a driver, he should know all the requirements, all the things regarding driving, mechanics, and regarding the motor, engine, and all sorts of things. So, actually, he wants to be a mechanic. But the story changes when Madam Anis Jung take us to his house. Mukesh belonged to a family of bangle sellers. His father was a bangle seller, his father was a bangle maker, his brother was a bangle maker, and they are doing the business of bangle making. So, Madam Anis Jung told us that the entire town of Firozabad is engaged in the bangle making profession. There are so many industries related to this, and about 20,000 children working there as child labor in the bangle making factories, and they even do not know that they are being employed as a child labor, and their life is in danger. Most of these children, they ended up their profession by losing their eyesight also. So once again we are here with this next part of this lesson, and this is this part. Okay, fine. So it is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. So Mukesh's grandmother is also there. See who are living in Mukesh's house. Mukesh's elder brother, his wife. She was in charge of all the three men over there, and Mukesh's father. Okay. Then one more character is there, and that is Mukesh's grandmother, and she was talking about her own husband, means grandfather of Mukesh, who has lost his eyesight because of this bangle making profession, and she was saying that he went blind with the dust from polishing the glass of bangles. You see, dear friend, in very pathetic condition, in very horrible conditions, the bangle makers have to work, and most of the bangle workers, they ended up their profession by losing their eyesight before they become adults. So आगे वो कहती है कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी. डेस्टिनी मीन्स, डियर फ्रेंड, देखिए डेस्टिनी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के लाया था. डेस्टिनी मीन्स, यस हियर, डेस्टिनी मीन्स फेट, फॉर्चून या नसीब. तो वो कहती है कि उसी थ्रेड को आगे बढ़ाती है. किस थ्रेड को? जहाँ से एंड करती है अनीस जंग इस लेसन को, बोलती है कि ही वॉज स्टिल, पहले तो वो मुकेश के फादर एक टेलर थे, ठीक है, और उसके बाद वो बैंगल मेकर बने, ठीक. और इतना सब करने के बावजूद अभी वो अपने जो है बुढ़ापे में आ गए, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी
ना ही वो अपने दोनों बच्चों को, ही वॉज स्टिल नॉट एबल टू आइदर रिनोवेट द हाउस एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल जो है भेज सके. सो दिस इज वेरी पैथेटिक. यू सी दैट after having a good profession, they are not able to make their lives happy or satisfied. But we can say that they are satisfied because they are getting bread and butter, but more than that, what we want, education for children, medicinal security and all sorts of things they won't get with this profession. He had just managed to teach them, both of them, his two sons, the skill of making bangles. Okay, so अपने इसी बात को वो आगे बढ़ाती है, और मुकेश की ग्रैंड मदर वो बोलती है कि इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी. ये उसका कर्म है, ये उसका अपना कर्म है. बोलते हैं ना हिंदू धर्म में कर्म हमारा, ये उसकी डेस्टिनी है, ये उसका नसीब है कि वो इतना ही बस कर पाया. मेरे खुद के हस्बैंड, मतलब मुकेश के ग्रैंडफादर, मतलब मुकेश के फादर के फादर, वो बोलते हैं उनकी भी यही हालत रही. ये तो इनकी तो कम से कम आंखों की रोशनी नहीं गई है. मेरे हस्बैंड की जो है आंखों की रोशनी चली गई थी. मतलब मेरा बेटा जो है अपने नसीब से काम कर रहा है, और नसीब को दोष वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दे आर बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स. यू सी, ओके. So that is why she further says, can a God given lineage ever be broken? देखिए कितना अजीब शब्द है यहाँ पे, नया शब्द आया है. कैन ए गॉड गिवन लैंग्वेज. बूढ़ी महिलाएं जो है हमेशा ये शब्द का इस्तेमाल करती है. लाइनेज का मतलब होता है हाथों की रेखाएं. ओके, तो वो बोलती है कि क्या भगवान ने दी हुई हमारी हाथों की रेखाओं को कोई मिटा सकता है, कोई ब्रेक कर सकता है? मतलब हम बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में जन्मे हैं, हमारा परिवार बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में है, हम उसी कास्ट में, उसी कैटेगरी में जन्मे हैं, और हमें जो है उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा. भगवान ने जो नसीब हमारा लिख कर भेजा है, क्या हम उसको मिटा सकते हैं? ये उनकी थिंकिंग है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. तो एक बैंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है, ओनली बैंगल्स. कोई एजुकेशन नहीं, कोई अच्छे सपने नहीं, कोई बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छे स्कूल में भेजने का नहीं है, कुछ नहीं है. बस यही उन्होंने देखा है. क्या देखा है? ओनली बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद. हर तरफ सिर्फ बैंगल से बैंगल नज़र आते हैं उनको. फिरोजाबाद के हर रास्ते पर आपको जो है एक तो चूड़ियों की दुकानें या ये चूड़ियों की फैक्ट्रियां नज़र आएंगी. घर घर में लोग जो है इसे काम करते हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स. देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, स्पाइरल्स. गोल गोल होते हैं ना, स्पाइरल उसको बोलते हैं, है ना. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल. आपको बता देता हूँ मैं एक बार. ये देखिए स्पाइरल्स है बैंगल्स के. एक मिनट आगे चले गया थोड़ा. स्पाइरल्स, ये गोल 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 है ना, ये स्पाइरल्स है. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. तो हमारे इंद्रधनुष में जितने कलर है, लगभग सारे कलर और उससे भी ज़्यादा कलर्स की जो है चूड़ियाँ बनती है. और ये सारे के सारे कलर्स की चूड़ियाँ ये लोग बनाते हैं, दिन भर उसमें बिजी होते हैं. लेकिन इतने सारे कलर्स उनकी चूड़ियों में होने के बावजूद, इतने इंद्रधनुष उनके चूड़ियाँ होने के बावजूद, उनका जो लाइफ है वो बड़ा ही डार्क है, अंधकार में है. मतलब इंद्रधनुषी कलर की चूड़ियाँ वो बना सकते हैं, लेकिन अपने लाइफ को कलरफुल बनाने में वो नाकाम रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं मुकेश के फादर, मुकेश की फैमिली, और वो इसको किसी की नाकामी नहीं मानते हैं. वो इस चीज़ को जो है भगवान की मर्जी मानते हैं और बोलते हैं कि भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा सकता है.
So sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yard. देखिए नए शब्द है आपके लिए, वेरी फाइन वर्ड्स. माउंट यानी टीले और अनकेम्ड यानी अस्त व्यस्त. माउंट यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक. आपको बताता हूं मैं माउंट. ये देखिए, ये है माउंट. देखिए ये माउंट बोलते हैं इसको. ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे इसको बोलते हैं माउंट. टीले. और अनकेम्ड यानी अस्त व्यस्त. पूरे आंगन में जो है सब तरफ क्या पड़ी है, चूड़िया पड़ी है. ओके. और स्पाइरल यानी देखिए गोल. माउंट यानी लार्ज पाइल हियर ऑफ बैंगल्स. एंड अनकेम्ड मीन्स नॉट टाइडी. आगे कुछ शब्द और आएंगे. हटमेंट्स यानी ग्रुप ऑफ मिनी हट लाइक होम्स. और एक वर्ड आएगा शैंटी. शैंटी मीन्स हट्स ऑन बॉर्डर्स ऑफ सिटी. ओके. नाउ सी, तो वो बोलती है कि सब तरफ जो है क्या पड़े हैं वहां पे, माउंट्स इन अनकेम्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स. और ये सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो पाइल्ड किए हुए एक के ऊपर. पाइल बोलते हैं बच्चों ढेर. किसी चीज़ का ढेर है ना, जैसे बर्तनों का एक के ऊपर एक रख देना, चूड़ियों को एक के ऊपर एक रख देना, उसको बोलते हैं पाइल. तो आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स. देखिए नया शब्द है 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन. देखिए इसका मतलब क्या है. हैंड कार्ट्स क्या होते हैं. हैंड कार्ट्स ये है, ये यंग बच्चा देखिए, ये व्यक्ति देखिए लेके जा रहा है, ये माउंड लेके जा रहा है ना, ये माउंड है. माउंड एक के ऊपर एक के ऊपर एक. और इसको बोलते हैं हैंड कार्ट्स. क्या है ये, हैंड कार्ट्स है ना. रिक्शे, रिक्शे के ऊपर वो लेकर इसको जा रहे हैं. कैरिड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन. शैंटी टाउन, शैंटी बोलते हैं शहर के किनारे बसे हुए छोटी छोटी झोपड़ियाँ, उसको हम बोलेंगे शैंटी. हाँ, शैंटी वर्ड भी यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है. देखिए शैंटी, हट्स ऑन बॉर्डर्स ऑफ सिटी. नाउ आगे भी मैंने एक चीज़ आपके लिए लिखी है, वो देखिए आप क्या लिखा है मैंने. सी माउंट्स ऑफ बैंगल्स इन द पिक्चर. हाँ, ओके फाइन. नाउ सी, एंड इन डार्क हटमेंट्स, 1 मिनट. एंड इन डार्क हटमेंट्स, पूरा डार्क जो है, छोटी छोटी सकरी गलियां है ना, सकरी गलियों के अंदर छोटे छोटे मकान बने, हवा नहीं खेल रहे वहाँ पे, एकदम जो है सफोकेटिव एटमॉस्फेयर वहाँ पर है. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. देखिए वो क्या कर रहे हैं. वो डार्क हटमेंट्स में लोग बैठे हैं अपने बच्चों के साथ. छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी लड़कियां बैठी है, बॉयज गर्ल्स. और कौन बैठा है, विद देयर फादर्स एंड मदर्स. विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास. मैं आपको चित्र बताता हूँ इसका. देखिए किस तरीके से क्या बोल रहा है ये देखिए, ये यहाँ पे ये देखिए, ये है फ्लिकरिंग, ये फ्लिकरिंग फ्लेम्स है, ये है ना. और ये क्या कर रही है महिला यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये वो गोल गोल वेल्डिंग कर रहा है. वेल्डिंग समझते हैं ना, वेल्डिंग है ना ज्वाइनिंग. वेल्डिंग करना मीन्स ज्वाइन करना. क्या जा रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं वो बैंगल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, वो एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो वही बात जो है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने बताई है. ठीक है. तो in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Circle यानी गोल. हाँ समझते हैं ना, circle means गोल. And circles of bangles, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी जो आंखें हैं वो इतने घंटे जो है वहाँ पर काम कर लेते हैं कि उनकी आंखें उस अंदर के घने अंधेरे से जो है ज़्यादा जो है एडजस्टेड है टू द डार्क देन टू द लाइट
आउटसाइड, क्योंकि अंदर का जो अंधेरा है और छोटे छोटे फ्लिकरिंग लैंप्स के ऊपर वो जो है बेचारे काम कर रहे हैं दिन रात जो है, उससे वो ज़्यादा एक्वेंटेड है, उससे वो ज़्यादा एडजस्टेड है, और बाहर के लाइट से उनका ज़्यादा वास्ता नहीं है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड, और इसी वजह से जो है उनकी आंखें चली जाती है अपने काम के बाद, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। वो एडल्ट्स होने के पहले ही, मतलब वो जवान होने से पहले ही, वो बड़े व्यक्ति होने से पहले, उम्र में बड़े होने से पहले ही जो है इन जवान जवान बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दोस्तों मैंने आपके लिए थोड़ा सा स्पेशली, आज हमारा क्लास नहीं था, फिर भी मैं 11 बजे कल अपने गूगल मीट पे कई लोगों को ज्वाइन किया था, तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसको ज़रूर देखिए। यूट्यूब पे भी जाइए, उसको थोड़ा सा देखिए, है ना, कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछिए। टुमारो एट 11, कल हम 11 बजे जो है बैठेंगे हिंदी के पीरियड के बाद, और कल हालांकि मेरा पीरियड नहीं है, फिर भी हम कल बैठेंगे, और कल जो है आपको नई स्टोरी, सविता की स्टोरी हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।